15th one. Purchased goods of 10,000 at 10% TD and 4% CD from Ajay. Received 30% of the amount. Received 30% of the amount. Is it? मतलब received मतलब हमने receive किया कि उसने receive? What are they trying to say? उसने रिसीव किया. हमने खरीदा, हमने पे किया, उसने रिसीव. बराबर. तो 30% of the amount, so is it on cash, on credit, or partly cash, partly? It's on credit. It's partly cash, partly credit. 30% of the amount we have paid. याद है हमने लास्ट लेक्चर किया था half cash, half credit, 1/3 cash, 2/3 credit. Remember this? सीडी याद है कि भूल गए 2 लेक्चर में? अच्छा बताओ मुझे. Which transaction do you calculate trade discount on? Both the transactions. Cash or credit? और cash discount? Only on cash cash. transaction. Only on cash. So यहाँ पर कैसे करना है पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट? याद आया आपको? तो पहला स्टेप क्या करने का? ग्रॉस वैल्यू लेने का. व्हाट इज द ग्रॉस वैल्यू? 15 का ग्रॉस वैल्यू इज 10,000. इज दैट राइट? 10,000 is the gross price. Then gross value is 10,000. उस पे 10% TD पहले ही माइनस कर दिया जाए. लेस TD 10%. कितना होता है 10,000 का 10%? 1,000. Subtract it. What's your net amount? 9,000 rupees. Is that correct? Now, can you directly calculate CD on 9,000? No. What you do? 2 parts you do. What are the 2 parts? So, हाँ. in the question, there's a typo, right? It should be paid 30% amount. Paid 30. Received 30 मतलब he received ऐसे. Paid 30% कर दो उसको. Received को just make it paid 30%. Paid 30% of them. Paid 30%. Okay. So 30% and 70%. 30% is cash. 70% is credit. What is 30% of 9,000? 2700. 2700. And what is 70%? 1,003. Now you will take CD, but on which part? Cash part. 2700 का 4%. 2700 का 1% is what? 27. 27 into 4 करोगे तो कितना मिलता है? 108. 108. 108 you subtract, so you get what? 2,592. Am I right? 2,592. All right. 2,592. Okay. ये हमने सीखा हुआ था partly cash, partly credit. What is the entry for buying goods on credit from Vasant? No, from which Ajay, sorry. What is the entry for credit purchase from Ajay? Purchase to Ajay. Purchase to Ajay. Purchase to Ajay होता है. Purchase to Ajay. Purchase to Ajay में कितना अमाउंट आएगा? आपका क्रेडिट कंपोनेंट कितना है वहां पे? 6,300. And what is the entry for cash purchase from Ajay with CD, with discount? 2,590. Purchase to cash. Purchase to cash to Cash to discount received account. बराबर है? Purchase to cash to discount received. याद है discount received का लॉजिक? 2 एंट्रीज हैं. Purchase to cash, purchase expense बढ़ा, cash घटा. बराबर? And purchase to discount, expense तो बढ़ा, goods तो खरीदा, लेकिन पैसा नहीं दिया. पैसा नहीं दिया तो that's your gain. Discount received will be credited. So purchase to cash to discount, that's your combined entry. How much would you write in purchase? 9,000. 9,000. 9. This purchase. 2,700. 27. कैश वाले में तो 2,700. बाद में टोटल में 9. तो कैश वाले में परचेज में आएगा 2,700. एंड हाउ मच कैश इज गोइंग आउट? 2,590. 2,592. एंड हाउ मच इज डिस्काउंट रिसीव? 10. 108 is discount. Sorted. अब इसको कंबाइंड करना है.
what will be the combined entry? Can you combine this first of all? Can you combine the two entries? Yeah. Definitely. Yes. There's a common Yes, debit of sir. purchase, right? So what will be your combined transaction? क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? Sir, Purchase account debit. Yes. Purchase To account Ajay debit. account, To cash Ajay account, account, to cash account, to discount received. Exactly. Purchase account debit to Ajay, to cash, to discount. How much would you write in purchase? 9,000 rupees. 9,000 rupees. How much would you write in Ajay? 6,000. 6,300. 300. How much in cash? 25. 259. 92. And discount received 108. That is the CD. याद आया ये किया था हमने लास्ट लेक्चर पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट ओके परचेज टोटली एक्सपेंस डेबिट बिल वैल्यू इज 9,000 टू अजय दैट्स आवर क्रेडिटर क्रेडिटर इज लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट टू कैश कैश कम हुआ तो डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम बढ़ा मुझे बताओ अजय कौन है इन दिस ट्रांजैक्शन हु इज अजय फॉर अस Creditor. क्रेडिटर म्हणजे Liability. लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट कितना पैसा देना बाकी है अजय को 6,300. 6,300 being goods purchased from Ajay partly on cash and partly on credit at 10% TD and 4%. That's generation. Partly cash, partly credit. Don't forget to write that. Partly cash, partly credit. Okay. Next one. याद आया any doubt in this? Let's move ahead. 16th one. Purchased goods of 10,000 at TD of 10% and 3% CD from Vishal. Paid half amount by check. Again, cash, credit or partly cash, partly credit. Partly cash, partly credit. Partly cash, partly credit. आधा पैसा दिया है आपको. आपने आधा पैसा पे किया. First step, what's your gross price? What's your gross price? Gross price is 10,000. What are the other names of GP? You remember? Gross price, MRP. MRP, Lease price. Market list price. price, market price, Catalog price. catalog. Okay. So 10,000 पे you subtract TD. What's your TD? TD तो आना ही है. दोनों पे आता है cash credit 10%. What is 10% of 10,000? 1,000. What is the net amount? 9,000. Is that correct? Now, would you directly calculate CD? Would you directly calculate CD? No. You divide the 9,000 into two parts. That is cash and credit. Half is cash and half is credit. All right. So this component is 4,500 and this component is 4,500. Okay. Now, CD will come on which part? CD will be calculated on cash part. Cash. And how much is your CD? 3%. Sorry, 3% of 4,500. That comes to how much? 135. 135. 135. Absolutely right. 135. 45 threes are 135. So you subtract it, you get 4,265. Is that right? 4,265. Correct? Huh? So 4,361. 4,365. 4,365. अब बताइए आपकी जर्नल एंट्री. अब आपको पूरा जर्नल एंट्री दिमाग में फ्रेम करके मुझे बताना है. देखो आपने परचेज किया है पार्टली ऑन कैश, पार्टली ऑन क्रेडिट और पेमेंट इज बाय चेक. तो पूरी एंट्री कंबाइंड कैश क्रेडिट विद डिस्काउंट. कैन यू कंबाइन एंड टेल मी? Purchase account debit. Purchase account debit to what? To Vishal account, to bank account, to discount received account. To Vishal account, to bank account, to discount received account. Absolutely perfect. Did you all understand? All of you?
Purchase to Vishal, that was the credit part. Purchase to bank to discount, that was the cash part. We clubbed both because purchase was a common debit, so we clubbed both. So purchase to Vishal to bank to discount. Amounts क्या होंगे? Purchase में क्या? 9,000. 9,000. 1,000 rupees आएगा. तो विशाल में 4,500. 1,500. बैंक में 4,365. 4,365 and discount received 135. narration. Now I am skipping. Okay, narration आता है आप लोगों को. You can also skip the narration. ये जो important entries है उसमें narration लिखो. खाली short में लिख सकते हो आप. This is partly cash, partly credit. So that when you revise, you come to know it is partly cash, partly credit. अब 17th वाला यहाँ तक पहले क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट? पार्टी कैश पार्टी क्रेडिट कल भी किया था हमने, लास्ट लेक्चर आई मीन. कूल. नेक्स्ट वन, we returned goods of 1,000 to Vishal. We returned goods of 1,000 to Vishal. हमने विशाल को goods return कर. कौन सा रिटर्न होगा ये? Purchase return. परचेज रिटर्न. Purchase return. तो कौन से दो अकाउंट्स हो गए इस ट्रांजैक्शन में? एक तो परचेज Purchase रिटर्न अकाउंट account होगा. and purchase account. And sales. Vishal account. Vishal. विशाल. Remember the returns are always on credit base. Returns are always on credit base. मतलब क्या, हम लोग goods return तो कर देंगे, लेकिन क्या पैसे मिलेंगे ताबड़तोड़? डायरेक्टली अपने को will we get cash immediately? So always in returns, one account is purchase return या sales return, and the other account is parties account. Other account is parties account. Okay? So Vishal account and purchase return account. Vishal कौन था हमारा? Liability. लायबिलिटी, क्रेडिटर था और हमने उसको गुड्स रिटर्न किया. क्यों रिटर्न किया? ऐसे ही. Why did we return the goods? Defective basis. Majority of the cases defective goods are returned. Okay, defective goods आपने रिटर्न कर दिया विशाल को, बराबर है? तो विशाल अकाउंट एंड परचेज रिटर्न आर द टू अकाउंट. अब सोचो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट? थिंक ऑल ऑफ यू. विशाल और परचेज रिटर्न, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? Tell me, Vishal or purchase? Vishal account debit. Vishal account debit and purchase return credit. Why? What is Vishal for us? It's a Purchase- liability. Liability decreases. Liability decreases, goods return. And करोगे तो purchase liability. return Then is an income. is a Is type an of income. Income. Purchase return is like an income, opposite of purchase, right? Opposite of purchase. तो इनकम बढ़ा तो क्रेडिट. जितना परचेज रिटर्न करोगे उतना इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट. Got it? So Vishal account debit, liability decreases, so debit, and to purchase rate, income बढ़ी तो credit. So directly your entry would be Vishal account debit to purchase returns. Vishal account debit to purchase returns account. Vishal liability decreases, so debit, purchase returns, income increases, so credit. Amount is 1,000. Amount is 1,000. इसका नरेशन लिखना है, being goods returned to Vishal. Being goods returned to Vishal. Think and tell me. लिख लिया? बोलो. विशाल कौन था हमारा? लायबिलिटी. लायबिलिटी ये ट्रांजैक्शन से कम. तो अगर आप ये दो ट्रांजैक्शन को देखो, विशाल वाला 16th और 17th, ओके, मुझे देख के बताओ विशाल को अभी नेट कितना पैसा देना बाकी? 3,500. 1,500. एब्सोल्युटली राइट, 3,500. क्यों? 4,500 का गुड्स तभी क्रेडिट पे था, वो देना था, और 1,000 रुपए का रिटर्न था, तभी 3,500 देना बाकी. मुझे एक और चीज बताइए कि अगर आपने परचेज रिटर्न्स किया होता और तुरंत कैश मिल जाता, ताबड़ तो वो कैश दे देता, तो क्या एंट्री? cash account to purchase return. तो फिर कैश टू परचेज, तो फिर विशाल टू परचेज रिटर्न नहीं आता.
अगर आपने डिफेक्टिव माल रिटर्न किया और उसने कैश दे दिया तो, जो कि होता नहीं है प्रैक्टिस, 99% ऑफ द केसेस में होगा नहीं कि आपने गुड्स रिटर्न किया और पैसे आ, बट अगर बाय चांस कोई बहुत दिलदार क्रेडिटर है जिसने आपको कैश दे दिया, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू परचेज, तो एंट्री होगी कैश टू परचेज। क्लियर, कैश आ गया और गुड्स डिफेक्टिव रिटर्न। फिर आपको विशाल को कितना देना बाकी रहेगा इन दैट सिचुएशन, अगर कैश आ गया होता तो 4,500. 4,500, ठीक है। फिर विशाल कुछ लायबिलिटी कम नहीं होगी, उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है, कभी रिटर्न में जनरली कोई कैश देता नहीं है, रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट। क्लियर, तो विशाल टू परचेज रिटर्न और विशाल को अभी 3,500 देना बाकी। कंफर्टेबल यहाँ तक? अभी विशाल आपको क्या देगा इन फ्यूचर, अगर उसने कैश नहीं दिया तो वो आपको क्या देगा फॉर डिफेक्टिव गुड्स? Replace the goods. रिप्लेस, राइट, रिप्लेस। तब आप क्या एंट्री मारोगे जब वो रिप्लेस करके देगा गुड्स को? No entry. आएगी, रिटर्न्स की आई ना तो गुड्स खरीदने की भी आई। It will be a Purchase new account. purchase to Vishal. It will be a new entry for credit purchase to Vishal. Okay. अभी आपने क्या पास किया, विशाल टू परचेज रिटर्न, लायबिलिटी घटी एंड इनकम बढ़ी, फिर वापस परचेज किया, फ्रेश गुड्स आए तो परचेज टू विशाल, वापस परचेज, एक्सपेंस बढ़ेगा, विशाल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, वापस आप उसको 4,500। But sir, purchase will come when this will be settled, no? If it isn't settled, then how we can write purchase and Vishal? Settled as in, so settled in the sense, Means if we have paid 3,500 and then तभी तो सेटलमेंट के वक्त थोड़ी परचेज अकाउंट आता है, सेटलमेंट के वक्त तो पार्टी और कैश आता है, विशाल एंड कैश, विशाल लायबिलिटी। after settlement it would be purchase account. नहीं, Before नहीं, it, नहीं. Before settlement also, if you have returned goods ना, what have you done? विशाल डेबिट, लायबिलिटी घटा और परचेज रिटर्न बढ़ा, अभी बाद में उसने फ्रेश गुड्स दिया ना, इट इज लाइक अ न्यू परचेज फॉर, अगेन परचेज टू विशाल, अगेन परचेज, like that you can buy return and last में you can settle net. तो लास्ट में how will you find out the amount बताया था, याद है, क्रेडिट माइनस डेबिट शॉर्टकट, विशाल का क्रेडिट माइनस विशाल का डेबिट करके विशाल टू कैश, you can claim the net. तो बीच में how many ever times you want, you can return the goods, you can supply more goods, return supply, return किया तो परचेज रिटर्न, सप्लाई किया तो परचेज, that will be your credit. So you can pass it before settlement. So those are some extra additional stuffs. Okay, they don't ask it usually. They'll ask you only returns की entry over here. Returns का entry समझ में आया सबको? विशाल liability घटा और purchase return income बढ़ा. Next one. We return goods of 1,000 gross to विशाल. अभी देखो वापस हमने रिटर्न किया है, तो एंट्री क्या होगी परचेज रिटर्न की एंट्री? Vishal account to purchase return. विशाल टू परचेज रिटर्न, ये समझ में आया? विशाल इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, या फिर लायबिलिटी घटा तो डेबिट, एंड परचेज रिटर्न इनकम तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बराबर है, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, तो एंट्री तो वही है विशाल टू परचेज रिटर्न, लेकिन अमाउंट के बाजू में आपको दिखाई दे रहा है क्या दिया हो, व्हाट इज गिवन बिसाइड्स द अमाउंट? Gross. ग्रॉस. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस? ग्रॉस प्राइस मतलब क्या? Estimated. Actual price. That is the MRP before TD वाला, before TD वाला. अब आप मुझे सोच के बताना, आप एक डीलर हो, ठीक है, यू आर अ डीलर, आपने 10,000 का ग्रॉस प्राइस का गुड्स 9,000 में परचेज किया, ठीक है, 10,000 का ग्रॉस प्राइस का गुड्स आपने 9,000 में परचेज किया, तो आपने जर्नल एंट्री में क्या अमाउंट लिखा हो, 10 या 9? 9,000. 9 लिखा होगा. अब समझो 9 के 9,000 के गुड्स डिफेक्टिव नहीं, तो आप रिटर्न कर, तो परचेज रिटर्न में क्या अमाउंट लिखो, 10,000 की 9? 9,000. 9,000. इसलिए 9,000.
10,000 कहीं पे रिकॉर्ड हुआ था, टीडी कहीं पे रिकॉर्ड हुआ था, बोथ वेर इमेजिनरी। तो ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट विच प्राइस, ग्रॉस प्राइस और नेट प्राइस। Net price. आपने परचेज 9 में किया है तो रिटर्न भी 9 में ही करोगे, यस और नो? तो यहां पर आपको जो 1000 दिया है वो ग्रॉस प्राइस है या नेट प्राइस? Gross. ग्रॉस है, मतलब इज इट बिफोर टीडी या आफ्टर टीडी? Before it. बिफोर टीडी का अमाउंट है, तो क्या आप ये प्राइस पे एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो परचेज रिटर्न्स की? नहीं कर सकते। जब भी ऐसे ग्रॉस प्राइस दिया है तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा इन सच ए सिचुएशन? नेट प्राइस ढूंढना पड़ेगा। You have to find out the net price. How to find out the net price? Simply by subtracting TD. लेकिन सर TD का तो परसेंटेज दिया ही नहीं है, दिया है कहीं पे? It would be 10 only. Why 10%? Because we had purchased above. at 10% TD. Yeah. कैसे मालूम पड़ा परचेज है 10% TD है? नियरेस्ट परचेज ट्रांजैक्शन देखना है, नियरेस्ट परचेज ट्रांजैक्शन ऑफ विशाल। Check the nearest purchase transaction of Vishal. What was the TD component over there? What was the TD percentage there? 10%. 10%. तो परचेज के वक्त अगर 10% है तो परचेज रिटर्न्स के वक्त भी कितना होगा? 10%. सेम ट्रेड डिस्काउंट लेना है, सेम ट्रेड डिस्काउंट। ओके, आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, ये वाला 10,000 का गुड्स 9,000 में लिया तो 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 1000 रुपीज आपका ट्रेड डिस्काउंट था, बराबर है? अभी आपने टोटल पे कितना डीडी था? 10% था अभी, लेकिन आपने सपोज टोटल गुड्स रिटर्न नहीं किया, खाली 1000 का ग्रॉस प्राइस का गुड्स रिटर्न किया, तो व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ दिस 1000 का ग्रॉस? 900. 900। सेम टीडी परसेंटेज तो सेम ही रहने वाला है, 100। आर यू गेटिंग दैट? सो यही करना है आपको यहाँ पर। 1000 इज ग्रॉस माइनस टीडी। कौन सा टीडी लेने का? विशाल वाला टीडी। व्हाट इज विशाल वाला टीडी? पर देखो विशाल वाला टीडी कितना दिया आपको? 10% दिया है, लेस टीडी 10%। 10% ऑफ 1000 कितना होता है? 100। तो व्हाट इज द नेट प्राइस? 900 रुपीज। तो बोलने का मतलब एंट्री कौन से प्राइस पे पास होगी, 1000 की 900? 900. क्यों? व्हाई नॉट 1000? वाज 1000 रिकॉर्डेड एनीवेयर? Bill was on 9,000. बिल वाज ऑफ 9000, नेट प्राइस। तो बिल जो प्राइस पे गुड्स खरीदा वही प्राइस पे रिटर्न करोगे। इज दिस क्लियर? तो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के आपको ग्रॉस प्राइस दिया जाए तो कभी भी ग्रॉस प्राइस कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता। कौन सा प्राइस रिकॉर्ड होता है? Net price. हमेशा नेट प्राइस। तो 900 रुपीज एंट्री वही रहेगी आपकी, विशाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। लायबिलिटी घटी तो क्रेडिट, परचेज रिटर्न इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, विशाल घटा तो डेबिट, परचेज रिटर्न इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू विशाल। सर लेकिन ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में तो टीडी माइनस नहीं किया था, यहाँ पे क्यों किया? Here it Because was that given was not gross gross. price. Mentioned about. मेंशन किया है ग्रॉस प्राइस, इसके लिए ऊपर नहीं दिया था ना कुछ, तो हमने क्या अज्यूम किया वहां पे क्या होगा? Net price. कुछ नहीं दिया तो नेट प्राइस। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। ग्रॉस दिया ना तो ऐसे कान खड़े हो जाए। ग्रॉस दिया तो क्या करना है आपको? व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू इन केस ऑफ ग्रॉस प्राइस? सबट्रैक्ट ट्रेड डिस्काउंट। व्हाई आर वी सबट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट? डिड यू अंडरस्टैंड? आप दुकान में गए, आपने पूछा नोटबुक कितने की, उसने बोला 50 रुपए। आपने बोला 3 खरीदूंगा तो सस्ते में दोगे क्या? बोला ठीक है 40 रुपीज में देता। 40 इंटू 3 120 रुपीज में आप खरीद के लेके आए, उसमें से 2 बुक्स डिफेक्टिव निकली, आपने बोला ये वापस ले लो। तो कितने कितने पैसे देगा आपको दुकानदार वापस? 2 बुक्स के, डिफेक्टिव बुक्स के 80 रुपीज ही देगा। जो प्राइस पे खरीदा वही प्राइस पे रिटर्न होता है, राइट? क्या आपको 100 रुपीज दे देगा एमआरपी के हिसाब से? नहीं, सवाल ही इम्पॉसिबल। तो यही लॉजिक है यहाँ पे, ग्रॉस और नेट का लॉजिक समझा? परचेज जब नेट प्राइस पे हो रहा है तो परचेज रिटर्न भी नेट प्राइस पे होगा, सेल्स जब नेट प्राइस पे होता है तो सेल्स रिटर्न्स भी Net price. ग्रॉस में कतई कभी भी कुछ रिकॉर्ड होने वाला, याद रखना ये चीज।
बढ़ते हैं आगे, सीधा 19th वन, सीधा 19th वन। नाउ 19th वन में क्या दिया है, अगेन यू हैव sold goods of 8,000 at 5% TD, 2% CD to Rohit, received a check for 60% of the amount. How is the transaction being done? Cash, credit, or partly cash, partly credit? Partly cash. Partly cash, partly credit. How will you do the working? You know, come on, start, all of you do it. पहले gross price ले लो. What is the gross price? Gross price is 8,000. उस पे TD माइनस करना है. What is the TD percentage? 5%. 400. Net price is 7,600. इसका दो पार्ट्स किया जाए, 60% and 40%. What is 60% of 7,600? What is 60% of 4560. 4560? Is that correct? 76 into 6. 76 are 46, 66 are 46. 4560 and 40%. 7 4s are 28. 6 4s are 24. 3040. Am I right? 3040. 40% is 3040. Is that correct? So Yeah. now you take CD. What is the percentage of CD? 2%. 2% of 4560. I think that is 45.6 multiplied by 2, 91.2. 91.2 को round off करोगे तो क्या मिलेगा? 91. How to round off? You know how to round off? 0.5 or more than 5. Round it off to higher. Okay? 0.5 or less than 5 rounded off to lower. Accounts में सब round off कर दो. Okay? तो decimal में नहीं. तो इधर 91.2 आ रहा है तो you can make it 91. Directly make it 91. Okay? पैसे का calculations you don't. So this becomes 91. And what is the final price? 69. 69. 446. 446. So this is the credit component, and this is the cash component. Okay. Now, tell me, are we selling the goods on cash, on credit, or partly cash, partly credit? Partly Cash and Full partly cash, partly Partly cash, partly credit. So can you frame a journal entry for combining credit sale with cash sale with discount? CD. Yeah, Rohit account, bank account, and discount allowed account. Yes, Rohit account debit, Two bank sales account. account debit, discount, allowed account debit, Two to sales. what? Sales. Rohit bank discount allowed to sales. Is that right? Rohit bank discount allowed to sales. Now, इसमें किसी को डाउट है रोहित बैंक डिस्काउंट टू सेल? तो अभी भी कंफ्यूजन हो ना, आराम से करो. पहला क्रेडिट से रोहित एंड सेल. व्हाट इज रोहित एसेट, व्हाट इज सेल्स इनकम? एकदम बेसिक. टाइप डिसाइड करो, अप्लाई द रूल एंड देन अराइव. रोहित डेबिट एंड सेल्स. वैसे ही बैंक क्यों लिखा? क्योंकि चेक है ना, तो बैंक बड़ा, बैंक बैलेंस बड़ा, डेबिट एसेट बड़ा, डेबिट एंड सेल्स इनकम बड़ी तो क्रेडिट. And discount allowed is expense, expense बढ़ा तो debit, sales income बढ़ी तो credit. Is this part clear all of you? Bank, Rohit, discount to sale. Any doubt in this entry? Combined entry. Hello. બધાને સમજાય છે? કસકને સમજાય છે બરાબરથી? Yes. चलो बताओ मुझे क्या होगा आपका अमाउंट. रोहित में क्या लिखा? 3040. 3040. बैंक में 4469. 4469. Discount allowed, that is CD, 91. And to sales total 7600. 7,600. This would be that is partly cash, partly credit. Short narration you can write partly cash, partly credit. Okay. Will you record TD or gross price anywhere in the books? TD या gross price कहीं पर record होने वाला है आपका? Trade discount या gross price कहीं पर भी होता है record?
नहीं होगा, बराबर है। तो ये तो वो आपका सेल पार्टली ऑन कैश पार्टली ऑन क्रेडिट। अब आगे बढ़ो 20th, रोहित रिटर्न गुड्स ऑफ 500। रोहित ने अपने को गुड्स रिटर्न किया, रोहित ने Sales Sales return. return. सेल्स Sales रिटर्न। return. एंड व्हाट इज द अदर? Rohit account. Rohit account. व्हाई नॉट कैश? क्या आप कैश दे दोगे? Credit transaction. क्रेडिट। आप कभी ताबड़तोड़ कैश देने वाले नहीं, तो कोई भी दुकानदार नहीं देता, नॉर्मल प्रैक्टिस ही होती है बिजनेस की। आप सेल्स रिटर्न लेते हो क्योंकि आपकी गलती नहीं हुई तो आप वो गुड्स अपने सप्लायर को वापस कर सकते हो, वो परचेज रिटर्न। समझ आ रहा है? सेल्स रिटर्न वाला गुड्स आप रिटर्न करोगे, फिर वो नया माल भेजेगा, वो माल आप फॉरवर्ड करो। नया माल खरीदोगे वो परचेज, नया माल फॉरवर्ड करोगे वो सेल। दैट्स हाउ द साइकिल वर्क्स। समझ में आया? आपने माल बेचा, डिफेक्टिव निकला, उसने किया रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न हुआ। वही सेल्स रिटर्न आप चिपकाओगे अपने सप्लायर को, वो परचेज रिटर्न होगा। फिर वापस वो सप्लायर फ्रेश गुड्स भेजेगा, वो परचेज होगा। और वापस आप ये फ्रेश गुड्स अपने डेटर को भेजोगे, ये सेल्स, फ्रेश सेल्स। इज दिस क्लियर? तो ये साइकिल काफी बारी बिजनेस में चलती रहती है। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वापस परचेज, वापस सेल्स रिटर्न, वापस परचेज रिटर्न, वापस परचेज, वापस। तो यहां पर हो रहा है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न एंड विशाल, क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए? आराम से। Sales return account debit. सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए और विशाल Credit. क्रेडिट होना चाहिए। क्यों, किस खुशी में? व्हाट इज सेल्स रिटर्न? Like an expense. लाइक एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ा तो Debit. डेबिट। Debit. और हु इज विशाल? हु इज विशाल? हु इज विशाल? Sir, it's Rohit. Debtor. Asset. डेटर, एसेट, एसेट। Sir, Rohit account. ओके रोहित सर। हु इज रोहित? डेटर, एसेट। एसेट बढ़ा कि घटा? Decreases. Reduces. Please. कैसा डिक्रीज हुआ? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? माल रिटर्न किया तो डेटर घट जाएगा, उतना पैसा कम देगा अपने को। तो डेटर घटा तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। तो एंट्री बनेगी आपकी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखोगे? तो 500 रुपया, 500 रुपीज। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। रोहन है. अरे यार Rohit. विशाल क्यों? Rohit only. रोहित, रोहित सर। Being goods returned by रोहित, being goods returned by रोहित। इसके नीचे वाले में विशाल है, इसलिए आई एम राइटिंग विशाल, सॉरी। दिस इज सेल्स रिटर्न टू रोहित, सेल्स रिटर्न टू रोहित 500। अभी 21st वाला पढ़ो, डिट्टो सेम ट्रांजैक्शन। रोहित रिटर्न गुड्स ऑफ 500 ग्रॉस। आता काय करायचं? TD. TD 5% minus. क्यों टीडी माइनस करना है? क्यों क्यों Gross price. It's a gross. ग्रॉस प्राइस। डू यू रिकॉर्ड एनीथिंग एट ग्रॉस प्राइस? बताओ बताओ बताओ। Oh. नहीं करते तो यहाँ पे क्यों दिया है? आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए दिया। आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है। ग्रॉस प्राइस देख के आपको बता रहे हैं कि क्या करोगे आप। तो ग्रॉस प्राइस पे आपको हमेशा टीडी माइनस करना है कि ग्रॉस प्राइस कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। कौन सा टीडी माइनस? ऊपर तो 1000 टीडी है, कौन सा टीडी माइनस करो? 5%. Recent one. Person. रीसेंट वाला रोहित का डीडी पकड़ने का, रोहित का रीसेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है? रीसेंट ट्रांजैक्शन एक्चुअल सम में भी रोहित को बेचते वक्त 5% था तो रिटर्न करते वक्त भी 5%। बात समझ आई? सेल्स रिटर्न के वक्त सेल्स का डीडी, परचेज रिटर्न के वक्त परचेज का। जो भाव पे खरीदा वो भाव पे रिटर्न करोगे, जो भाव पे बेचा वही भाव पे रिटर्न एक्सेप्ट करोगे। तो 5% लेना है। व्हाट इज 5% ऑफ 500? 25. 25. is the net price? 475, 475। जर्नल एंट्री में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा? बताइए। नो चेंज, इट विल बी सेम। क्या होगी जर्नल? Only amount will change. अमाउंट विल चेंज, यस। सेल्स रिटर्न टू रोहित ही रहेगा, लेकिन अमाउंट क्या हो जाए? 475, 475। being goods returned, being goods returned by Rohit। बता सर, ऊपर क्यों टीडी नहीं लिया, नीचे क्यों लिया टीडी? Gross. Purchase mention. ग्रॉस मेंशन किया है तो टीडी तो जक मार के माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ग्रॉस मेंशन नहीं किया होता तो So Don't. yeah. सेम अमाउंट,
Same amount. सेम अमाउंट छाप देते, तो क्वेश्चन में दिया अज्यूम इट इज नेट अमाउंट, इज दिस क्लियर? अब एक थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आगे जाके आपको आने वाला है। रोहित कौन था हमारे लिए? ये 3 ट्रांजैक्शन रोहित के आपके सामने है। रोहित कौन था? Asset, debtor. Asset, debtor, right? अभी after these 3 transactions, and after the 3 transactions, that is transaction 19, 20 and 21, tell me at this very moment after the 3 transactions, he is our debtor no doubt, लेकिन उससे कितना पैसा लेना बाकी है? How much are we 3040 supposed to minus receive from 3060, 2065. exactly 2065 rupees लेना बाकी? कैसे पता चला आपको 2065? elaborate. Debit minus credit. That's a shortcut. Okay, लॉजिकली भी सोच सकते हो कि आपने बेचा था तभी कितना लेना बाकी था, क्रेडिट पार्ट 3040 लेना, उसके बाद ये 500 रिटर्न हुआ, फिर 475, तो 500 माइनस हो जाएगा, 475 माइनस हो जाएगा, या तो फिर शॉर्टकट डेबिट माइनस क्रेडिट। डेटर से कितना पैसा लेना है? हाउ डू यू कैलकुलेट? डेबिट माइनस क्रेडिट ऑफ रोहित। कैन यू सी दैट? डेबिट माइनस क्रेडिट ऑफ रोहित। हेलो 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 हेलो। Yes. बिजनेस में भी, कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ढूंढना है कि भैया डेटर से कितना लेना बाकी है, हाउ वुड यू कैलकुलेट दैट? Total debit minus total Debits minus credit of that debtor. Are you understanding? Debits minus credit of that debtor. You'll get the amount 2065 लेना बाकी है. Got it? 3060 minus 500 minus 475. 2065 लेना बाकी है. ओके, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं 22nd वाले पे. 22nd वाले पे आगे जाते हैं. क्या दिया है पढ़िए जरा. 22nd. Purchase goods of 6,000. Purchase goods of 6,000 at 8% TD, 1% CD from Vishal for check. Is it on cash, credit, party cash, party credit? Cash. cash. Fully cash. Any doubt in this? विशाल का नाम तो दिया है, फिर भी कैश क्यों? By check check. लिखा है। mentioned. फॉर चेक मेंशन कर दिया है, सेकंड कंडीशन वाली, सो इट्स ऑन कैश. समझ आ रहा है सबको? कौन सा डिस्काउंट लूं बताओ मुझे. विच डिस्काउंट शुड आई कैलकुलेट? Trade discount. Both. Both TD and CD. First trade done. पहले ट्रेड और फिर कैश दोनों करना है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है. तो टीडी ले लो 8%, दैट इज 480. तो नेट अमाउंट इज व्हाट? 5520. इज दैट राइट? 5520. बढ़िया. 5520 पे कैलकुलेट करना है आपको सीडी. सीडी इज 1%. 1% ऑफ 5520, आई थिंक इट कम्स टू 55.2. एम आई राइट? 55.2 को आप राउंड ऑफ कर सकते हो 55 रुपीज पे. ना 5520 माइनस 55 करो तो कितना आता है आपको? 4000, अरे 5465. 5465. Is that correct? अभी आराम से सोचो और बताओ कि भैया परचेज कर रहे हो कि सेल कर रहे हो फॉर कैश? Purchase. परचेज कर रहे हो. Purchase. गुड्स परचेज फॉर कैश विथ डिस्काउंट विथ सीडी क्या होनी चाहिए? Purchase account debit. Purchase account to bank account and discount received. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक. किस लिए? क्योंकि चेक है, कैश नहीं लिख सकते आप. टू डिस्काउंट रिसीव. याद है आपको शॉर्टकट बताया था? द वे द कैश गोज द वे द डिस्काउंट. डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड इनकम. तो बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट. इज दैट क्लियर? सो परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट. यहाँ पे पार्टी का नाम क्यों नहीं आया? क्यों पार्टी का नाम? Cash transaction. Cash transaction, so no party. What amount you will write in purchase? Come on, tell me. 5,520. 5,520. That is the invoice price. How much in bank?
5,465. 5,465. And how much in discount? 55. This is being goods purchased for cash. Okay. At 8% TD and okay, 23rd one. We returned goods of 200 to Vishal. हमने विशाल को गुड्स रिटर्न किया. कौन से दो अकाउंट्स आने? Vishal account purchase return. विशाल एंड परचेज रिटर्न कि कैश एंड परचेज रिटर्न? विशाल एंड कैश. Vishal and purchase. विशाल एंड परचेज रिटर्न. देखो, whenever we return, always purchase return you have to use. Whenever someone else returns, sales return you have to. ठीक है. परचेज रिटर्न आपकी इनकम जैसा है, सेल्स रिटर्न आपके एक्सपेंस जैसा है. ये फिट कर लेना दिमाग में. बताओ, विशाल और परचेज रिटर्न, व्हाट शुड यू डेबिट, व्हाट शुड यू क्रेडिट? बोलो बोलो बोलो. विशाल और परचेज रिटर्न क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए? Vishal debit and purchase. विशाल डेबिट होगा. किस खुशी में विशाल डेबिट होगा? He is a liability and decreases. Exactly. Vishal is our liability. He was our creditor. He decreases. So debit. Is that right? And किस खुशी में परचेज रिटर्न क्रेडिट? Type of an income. इनकम. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. एब्सोल्युटली राइट. यशवी गंगर ने समझाया जे. विशाल टू परचेज रिटर्न्स. आयशा को समझ रहा है. विशाल टू परचेज रिटर्न, लायबिलिटी घटी एंड इनकम बढ़ी. कितना अमाउंट लिखोगे? 200. 200. नरेशन होगा being goods returned to Vishal. Being goods returned to Vishal. अब 20 और डिक्टो सेम है. वापस वी रिटर्न गुड्स ऑफ 300 ग्रॉस टू विशाल. अब भी क्या कर? 10% TD. क्यों 10%? क्यों 5% नहीं, 8% नहीं? 10% निकालना. आर यू श्योर? Recent transaction of Vishal contains 10% TD. 10% है. 8%. रिसेंट ट्रांजैक्शन ऑफ विशाल 8%. 8%. तो कितना परसेंट टीडी माइनस करोगे यहाँ से? 8%, 10%, 5%. How much? 8%. 8%. Why not 10%? देखो 16th वाले में 10% भी तो दिया हुआ है विशाल का टीडी. 22nd is the recent. नियरेस्ट. okay? नियरेस्ट. So 8% क्यों माइनस कर रहा हूँ टीडी? सबके दिमाग में गया बात? हेलो, ग्रॉस प्राइस रिकॉर्ड नहीं होता. अभी अभी बोला. नेट प्राइस, दुकानदार से बुक 50 का 40 में खरीदा था तो रिटर्न भी 40 पे करोगे. हमने गुड्स जो भाव पे खरीदा है वही भाव पे रिटर्न होगा. ग्रॉस प्राइस कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. 8% सब्ट्रैक्ट करो तो 24 रुपीज सब्ट्रैक्ट किया तो 276 आ रहा है. Yes. Yes. एंट्री क्या होगी? सेम एंट्री करनी है, डिट्टो एंट्री करनी है. विशाल अकाउंट डेबिट. लायबिलिटी घटी तो डेबिट. टू परचेज रिटर्न account. To purchase returns account. How much? 300 or 276? 270. 276. Being goods returned to Vishal. ठीक है. ग्रॉस और नेट का अर्थ समझ आ रहा है? लिख लो सब लोग और मुझे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना. ये दिमाग वाला क्वेश्चन. Looking at the 3 transactions of Vishal, who is Vishal for? Creditor. Creditor. Liability. तो पैसा देना है कि पैसा लेना है? देना है. देना है. अब ये 3 ट्रांजैक्शन के बाद नेट पैसा कितना देना है विशाल? How much money are we supposed to pay to Vishal? He is supposed to give us, He right? is supposed to give us. We are not in credit. We have not We've bought on already credit paid basis. the Already paid price. the amount. So now Vishal is our creditor or debtor? Debtor. Now he's a debtor. Debtor. For how much? 470. 476. 476. 476 का डेटर हो गया. ओके.
Actually, he is a creditor only, but filal temporarily he is a debtor. So either he can give us money or whatever money he owes us, 476, or what else he can give us? He can Goods. replace the goods. Replace the goods. Replace. What is more likely to happen? Replace. He'll replace the goods. He'll replace the goods and we'll get the goods back. We'll get the goods back. Is this clear? So purchase to Vishal. वापस जब goods आएंगे तभी purchase to Vishal. That will be the transaction. तो फिलहाल वो जरूरी नहीं है कि हर एक क्रेडिटर को पैसा देना ही है, यहाँ पे पैसा लेना बाकी कैश पर. नेक्स्ट वन 25, 26 और 27 खुद से ट्राई करो आप लोग. 25, 26, 27. Come on, try it on your own. Come on, all of you. खुद से ट्राई कीजिए 25, 26, 27. Come on. All right. Done. Twenty-six, 27, 25, 26, 27, 25. पहले तो बताओ 20 sorry 25th was on cash or on credit. Credit. आएगा मैं सीडी मत ले लेना, सीडी लालच के लिए देंगे, ऐसा लॉलीपॉप है लॉलीपॉप, लालच में मत आना. सीडी देख के कूद मत पड़ना सीडी लेने की. कैश क्रेडिट चेक कर, क्रेडिट पे है तो सीडी लेने की कोई जरूरत नहीं है, कैश पे तो ही सीडी है. बेस्ट सीडी 10%, 400, 600 is net price. Let's roll. So to be package. 6th one, Rajesh Technique. That correct?
કરેક્ટ છે, આવડે છે, પોતાની મેળે ફાવે છે. All of you. Difficult. Sir, and the reason would be being good sold by Rajesh. Right? Sold to Raj. Yeah. And goods returned by. Being goods returned by Raj. Goods sold to Raj. Okay. Being goods sold to Rajesh and goods returned by Raj. मुझे बताइए who is Rajesh for us, debtor or creditor? पहले हो गए 3 ट्रांजैक्शन. All of you got that? Anyone still doing? Harsh Mange done? Tell me, who is Rajesh for us? Is he a debtor or a creditor? He's a debtor. So, are we supposed to receive or pay? Receive. How much money are we supposed to receive from? 2,930. 2030. Very good. Why 2,930? It is 3,600. Debit minus credit. Rajesh ka debit minus Rajesh ka credit. Can you see that? That is how any business calculates the money receivable from its debtor. Debit minus credits in their accounts. Okay? इंडिया, अमेरिका, जापान, चाइना. तुम जापान में जाओगे, तुमको जापानीज लैंग्वेज नहीं आती है, तो भी तुम अकाउंट देख के पता कर लोगे कि ये डेटर से कितना पैसा लेना बाकी. डेबिट माइनस क्रेडिट. ओके. Return 26 and 27 transaction, he won't return cash, right? Like he will give us Goods. We will give goods in exchange. But what if we do not give goods in exchange? What if we are not able to procure the goods or whatever? We are not able to give him the goods, fresh goods in exchange. Then, at present, how much money he will give us if we settle the transaction? Then he will give us 3,600 minus 400 minus 270. Correct? If we give him fresh goods in exchange, then again we will pass a sales kind. Rajesh to sales, 400 and 270. Then again we will receive 3,600. But that will be only if we are able to give him fresh goods in exchange. That will be a new sales end. Rajesh to sales, Rajesh. Got it? So will there be sums in future where goods are given back and that condition is also applied? Don't have fresh goods in exchange. Okay. बहुत देखा था किधर एनएम का बुक में शीट में किधर एक आध ट्रांजैक्शन दिखता, बट अदरवाइज वो फ्रेश गुड्स वाला नहीं है. सैडली नहीं एक्चुअली होना चाहिए. ओके. तो इसलिए मैं आपको ओरली बताते जाता हूँ कि अगर आपने सेल किया, फ्रेश गुड्स आया, तो एंट्री क्या होगी? राजेश टू सेल्स. वापस अगर आपने फ्रेश गुड्स दिए तो वापस राजेश टू सेल्स. ओके. राजेश टू सेल्स, राजेश टू सेल्स. राजेश विल अगेन बिकम योर डेट and then he will give you full 3,006 once you have sold all the fresh goods. समझा ये? लो. तो ऐसा 2 बार एंट्री आएगा. अगर आपने फ्रेश गुड्स दिया ना राजेश को, तो आपका ऐसे 2 बार एंट्री आए. राजेश टू सेल 400, वापस राजेश टू सेल्स 270. और फिर आपका टोटल डेबिट, अभी डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो कितना आएगा? ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा. तो 3,600 minus 400 minus 270 plus 400 plus. Again, how much you are supposed to receive? 3,600. Got it? That's when if we give him fresh goods in exchange. Here we are not giving. बढ़ो आगे. What do you have 28th में? जरा देखो क्या दिया है 28th में. Purchase goods of 10,000 at 10% TD, 2% CD. Sold the above goods at 5% TD and 2% CD. You are buying and selling the same goods. Okay. So now be careful about this. You can never combine opposite transaction. Purchase और sale को combine नहीं करना. परचेज अलग करना है, सेल अलग से. ठीक है. परचेज का अलग एंट्री, सेल्स का अलग है. बात समझ आई? परचेज और सेल, इनकम एक्सपेंस, ऑपोजिट ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी क्लब. इनकम एक्सपेंस, परचेज सेल, यू कैन नॉट कंबाइन. कॉमन डेबिट, कॉमन क्रेडिट. अब परचेज गुड्स ऑफ 10,000, 10% टीडी, 2%. मुझे बताओ परचेज कैसे हो रहा है? लुक एट द फर्स्ट हाफ.
How is the purchase happening? Cash or credit? Cash only. Cash only. So which discount should come in purchase? Both. Both. Both TD as well as CD. So less TD कितना होता है इस पे 10%, that is 1000. Get your net amount to be 9000. Will you calculate CD? So yes, definitely yes, because it is on cash basis. I'm looking only at the purchase part. Sales part मैंने नहीं पढ़ा है. Sales part बाद में करो. So purchase part 9000 पे 2% is 180. Net price is 8820. मुझे आराम से कैश परचेज की एंट्री फ्रेम करके बताओ विथ सीट. कैश परचेज की एंट्री विथ सीट क्या होनी चाहिए? बताओ. Purchase account to cash account and to discount received account. Purchase account debit to cash account to discount received account. Yes or no? Purchase account debit to cash account to discount received account. All of you are getting that? Hello. आता परचेज में क्या अमाउंट? तो कैश में 8820 और डिस्काउंट रिसीव 180. ये तो सिंपल था, बहुत बार किया है आपने. परचेज पार्टली कैश, अरे फुली कैश, TD CD माइनस करके परचेज टू कैश टू डिस्काउंट. ओके, नरेशन इज सेम, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. आगे पढ़ो, सेकंड हाफ पढ़ो. सोल्ड द अबाउ गुड्स एट 5% TD एंड 2% CD. सेम गुड्स बेच दिया but at 5% TD, 2% CD. Tell me, think and tell me, what should be your gross? 10,000. 10,000, 9,000 या 8820? 82. No, 9,000. 1000. बनिया दिमाग चलाओ, बनिया बिजनेसमैन माइंड और आंसर. 8820. No, it would be 10,000. 9,000. It would be 9,000. 9,000. 10,000. 10,000. I don't know. You think? आप बिजनेस कर रहे हो, आपने माल खरीदा हुआ, ट्रेड डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट मिला, वही माल आप बेच, क्या लोन लोगे? आपका ग्रॉस 10,000. 10,000. आपका ग्रॉस प्राइस 10,000 होगा सेल के बाद. 9,000 भी नहीं होगा, 8820 भी नहीं होगा. क्यों? आपने परचेज क्या प्राइस पे किया है? 8820 तो कैश दिया है ना. 9,000. माल कितने का है? बिल कितने का बना है? 9,000. 9 का बना है. 10 का ग्रॉस प्राइस पे डिस्काउंट मिला आपको, TD मिला. बिल कितने का बना? 9,000 का. तो 9,000 का बुक्स में परचेज दिखेगा. परचेज इज योर एक्सपेंस, राइट? 9,000 रुपीज. हेलो, Yes. अब आप बेचने जा रहे हो वही गुड्स, तो आप ऐसे करोगे 9,000 पे और डिस्काउंट. आपको खुद को 9 में पड़ा है गुड्स, और आप 9 में और डिस्काउंट दे दोगे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. फिर आपका क्या होगा? Loss. लॉस होगा. समझाए छे कहीं? आपको जो भाव पे गुड्स आया, किसी ने तो बोला 8820, अरे बाप, पप्पा ने दुकान बंद भिजा दी, शटर डाउन. 8820 में गुड्स आया, पैसा 8820 दिया, और बेचने में उस पे भी डिस्काउंट दे रहे हो. 8820 पे और डिस्काउंट, और डिस्काउंट. तो खाओगे क्या? चना कुरमुरा, वो भी नहीं मिलेगा. आर यू गेटिंग दिस? Remember always, whenever you buy and sell the goods, the same lot, then your gross price will always be same. Your MRP will always be same. उसी पे trade discount calculate. Okay? तो ही तो कुछ बचेगा प्रॉफिट. कैसे प्रॉफिट होगा मैं आपको बताता हूँ. देखो, पहले याद रखना, क्या लोगे ग्रॉस प्राइस? बताओ मुझे, क्या लोगे ग्रॉस प्राइस? 10,000. 10,000. अब कौन से डिस्काउंट लोगे? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और बोथ? How are you selling the goods? Both cash TD transaction. as well as CD. What's your trade discount in this? सेल का ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5%.
सेल का पढ़ो, सेल, sold the above goods at what 5%. percentage? 5%. What is 5% of 10,000? 500. So net amount is 9,500. Is that right? Is Yes. that correct? Sir, on this 2% CD. On this you will take 2% CD. Absolutely right. Less CD 2%. ना होता है 190. तो नेट पैसा कितना आएगा आपके हाथ में? 9310 आएगा. इज दैट राइट? 9310 बराबर है. Yes. एंट्री क्या होगी सेल की? पहले एंट्री बता दो. कैश सेल हो रहा है विथ सीडी विथ कैश डिस्काउंट. बोलो बोलो बोलो. Cash account with discount allowed. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. सीडी एंड कैश गोज इन द सेम डायरेक्शन. अलाउड है, एक्सपेंस है. टू सेल्स अकाउंट अमाउंट्स क्या होंगे? कैश कितना है? 9310 राइट. डिस्काउंट अलाउड इज 19 एंड सेल्स में कितना आएगा? 9500. इज दैट करेक्ट? ये परचेज था, ये सेल था. दिस वाज परचेज, दिस वाज सेल. अब आर वी मेकिंग प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन? Profit. प्रॉफिट हो रहा है. हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस? कम ऑन टेल मी, हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? Income Income minus expense. expense. इनकम माइनस एक्सपेंस. अब ये दो ट्रांजैक्शन का इनकम बताओ और एक्सपेंस बताओ क्या है. व्हाट आर द इनकम्स इन दिस टू ट्रांजैक्शन? Income is 9310. इनकम 9310. दैट इज कैश. 9500. इनकम मतलब सेल्स कितने से क्रेडिट हुआ है आपका? 9500. 9500. दैट इज इनकम 9500. और परचेज कितने से डेबिट हुआ है आपका? 9,000. दैट इज एक्सपेंस. बराबर. सेल्स क्रेडिट हुआ 9500, परचेज डेबिट हुआ, दैट इज एक्सपेंस. और भी कुछ एक्सपेंस इनकम है ये ट्रांजैक्शन. Discount allowed. डिस्काउंट And अलाउड discount एंड डिस्काउंट रिसीव. व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड? Expense. Expense. व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव? Expense. Income. Income. इनकम. हाउ मच इज डिस्काउंट रिसीव? 180. 180. हाउ मच इज डिस्काउंट अलाउड? 190. 190. So finally, what is your total income? 9680. What is your total expense? 9190. 190. What is your total profit? 490. This is your total. 490. हम जानू इस एक ट्रांजैक्शन में आपने 490 कमाया. कैसा 490? एक तो सेल्स माइनस परचेज 500 रुपया उसमें कमाया और साइमल्टेनियसली डिस्काउंट भी है ना. आपने खरीदते वक्त जल्दी पेमेंट किया तो आपको मिला 180 का डिस्काउंट. बेचते वक्त उसने जल्दी दिया तो आपने अलाउ किया 190 का डिस्काउंट. तो 10 रुपया उधर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया आपका डिस्काउंट में. 500 minus 10. Net profit is 490 rupees. This is net profit. This is net profit. There is something that is called as gross profit. There is something that is called as gross profit. एकदम लास्ट चैप्टर का कंसेप्ट है, फाइनल अकाउंट्स में आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट. इसमें ही ग्रॉस प्रॉफिट भी है. इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताऊं मैं आपको? व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 500 रुपए. सेल्स माइनस परचेज. कैन यू सी सेल्स माइनस परचेज? दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट प्रॉफिट. इंपॉर्टेंट प्रॉफिट 500 है और फाइनल नेट प्रॉफिट 490 रुपए. दैट इज Sir, it's 590. 490 ना. 490 करेक्ट. 490. हाउ कम 590? 490. टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस. हेलो. Yes. Yeah. How yeah. to- ये सब आप लास्ट चैप्टर में करने वाले हो. फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन और बैलेंस शीट जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वो सब आपका लास्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट में. बिजनेस के रिजल्ट्स आप. ठीक है. सो ये सब चीजें ओके ध्यान में रख सकते हो आप कैलकुलेशन करते वक्त. प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस. हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस? वेरी सिंपल. हाउ डू यू कैलकुलेट? इनकम माइनस इनकम माइनस. व्हाट आर द इनकम्स? जितना क्रेडिट हुआ वो ऐड करो, जितना डेबिट हुआ माइनस.
एक्सपेंस जितने से डेबिट हुआ माइनस करो, इनकम जितने से क्रेडिट हुई वो ऐड. So હવે સમજાણું કેમ સેમ ગ્રોસ પ્રાઇસ લેવાનું, why not 9,000, why not 8820? What if you take your gross price at 9,000? Would you make profit or losses? Losses. Loss. Okay. So gross price should be same, 10,000. Keep that in mind. 29th one. Purchased goods of 8,000 at 10% TD, 1% CD and sold half of the above goods at 4% TD and 1% CD. पहले तो बताओ. Sir, what would be the reason for this? Reason for? Sir, the 20th का sold. Same gross price लिया वो reason? नहीं, वो नीचे है ना सेल वाला डिस्काउंट अलाउड, उसका रीजन क्या है? You are telling me, asking me narration. Yeah, that. नरेशन तो सेम ही है ना. बीइंग, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है. नरेशन इज बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. ये बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश करवाना. नरेशन तो सेम ही है. पहले लिखते थे ना आप कैश क्रेडिट कैश. क्वेश्चन में से So कॉपी we have to write the TD and CD rate. TD CD even if you skip, even if you write. नरेशन में खाली मीनिंग ट्रांजैक्शन का पता चल गया, मोर देन इट. होना चाहिए नरेशन, खाली स्किप मत कर, ये याद. नरेशन कोई इतना ध्यान से पढ़ने वाला नहीं है और उसका इतना कोई मार्क्स नहीं हुआ तो मार्क्स कटे ना चाहिए. दैट इज द आइडिया. बाकी एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो गया. TD/CD मेंशन किया नहीं किया, फॉर कैश मेंशन किया नहीं किया, फॉर क्रेडिट मेंशन किया नहीं. चलो 29th. Purchased goods of 8,000 8% TD, 1% CD. Sold half the above goods at 4% TD, 1% CD. How is the purchase part happening? Cash. Cash. Which discount you would take? Both. Both TD as well as less TD. कितना है purchase का TD? 8%. What is 8% of 8,000? 640. 640. 640. Net amount is 7,360. Is that right? And less CD. What is CD? I think it's 1%. 1% of 7,360 is 73.6. I think. 74. Yeah. So 74 rounded off to higher side. 0.5 or more than 5 rounded off to higher side. 0.5 से कम है तो rounded off to lower side. 0.5 से ज्यादा है या 0.5 है तो rounded off to higher side. 74 rupees minus किया जाए 186. 7,286. 7286. 7,286. क्या होगा जर्नल एंट्री इसका बता सकते हो? परचेज गुड्स फॉर कैश विथ डिस्काउंट. Purchase account debit. Purchase account debit to what? To cash account. Cash To to discount discount received account. receive. Purchase to cash to discount received. Is that right? Purchase to cash to discount received account. अब purchase to cash to discount received account. Okay. Amounts क्या? Purchase में कितना लिखो? 7360. 360. Cash में 7286. 7286 और डिस्काउंट में 74. बराबर. परचेज 7360 टू कैश 7286 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 74. ये तो हुआ परचेज का पार्ट. कैन वी मर्ज परचेज विद सेल्स? सेम एंट्री? नेवर डू दैट. ओके. स्टूडेंट गड़बड़ कर देते. परचेज टू सेल. भाई परचेज टू सेल कोई एंट्री नहीं होती. परचेज अलग रखना है, सेल अलग रखना है. एक्सपेंस और इनकम को मर्ज नहीं करना. Opposite entries cannot be clubbed. Now, सेल में सेम गुड्स बेचा लेकिन पूरा बेचा कि आधा? रीड करो जरा. Half the goods are sold, only half. तो क्या ग्रॉस प्राइस लोगे आप? 4,000. सर बाकी हाफ का क्या करोगे? What about the remaining half? अभी फिलहाल स्टॉक है, बाद में बेच ली, कमिंग डेज में बेचा जाए. फिलहाल आधा ही बेच. ग्रॉस प्राइस ग्रॉस का आधा. ओके. 8 का आधा लेना है. सेम जीपी. whenever you buy and sell the same lot, your GP remains same.
आधा बेच रहे हो, इसके आधा लेना है। अब टीडी कितना लोगे? व्हाट इज द टीडी एट द टाइम ऑफ सेल? 4%. 4%। 4% लेना है। 4 का आधा मत कर देना, परसेंटेज का हाफ नहीं करना है। 4 का आधा 2%, 2 का आधा 1, 1 का 0.5, ऐसा मत करना। परसेंटेज कैन नॉट बी हाफ। ओके, खाली ग्रॉस प्राइस आधा ले। टीडी 4%, that is 160. Net amount is 3840 less CD. Will you take CD? Yes. Yes. How much CD? 1%. 38.4 होता है ना, तो 38 कर। What is your final amount? 3802. Tell me the entry for cash sale with discount now. Cash sales with discount. Cash account debit to discount. Cash account debit, discount allowed account debit to sales account. Exactly. Cash account debit, discount allowed debit to sales account. Cash debit तो discount debit ही होना है, cash credit तो discount credit ही होना है। बताइए अमाउंट्स क्या लिखे? कैश में कितना आएगा? 3802. 802। डिस्काउंट में कितना आएगा? डिस्काउंट अलाउड में 38. 38 और सेल्स में 3840. 3840। Are you making profit or loss in this? आपने माल खरीदा और आधा माल बेचा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? Profit. प्रॉफिट ही हो। कैसे प्रॉफिट हो रहा है? हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस? यू डू इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम कितना है आपका? सेल्स 3840. 3840 is your income. All of you with me? Hello. 3840 आपका इनकम है, सेल्स इनकम। परचेज एक्सपेंस कितना गिना जाए? Half of 7360. Half of 7360. Which concept states to do this? Matching concept. Matching. Sales should be matched with purchase. आधा सेल हुआ है तो क्या पूरा परचेज ले सकते हो? नहीं, आधा ही परचेज लेना। 7360 का हाफ कर देना। That will be I think 3680 का परचेज। आपको करना नहीं है कैलकुलेट, जस्ट फॉर योर नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता कि सेल्स आपका है आधा तो परचेज भी आधा। अच्छा, डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट अलाउड आपका है 38। डिस्काउंट अलाउड 38 है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना लोगे आप? 74 का हाफ 37। That will be your discount received and discount allowed. So what is your total income? 3877. What is your total expense? 3718. 3718. So income minus expense. कितने का प्रॉफिट हुआ आपका? 159 का प्रॉफिट हुआ। That's how you calculate profit or loss for any business. Income minus. लेकिन आंख बंद करके सब इनकम सब एक्सपेंस नहीं, क्या करना है? इनकम को एक्सपेंस के साथ Match. पूरा सेल है तो पूरा परचेज, आधा सेल है तो आधा परचेज। क्लियर? अब दिमाग वाली बात क्या है इस बिजनेसमैन की, जो आपको प्रैक्टिकल बिजनेस में भी काम आ सकती है। आप परचेज के वक्त देखो कितना टीडी मिला इसको, परचेज के वक्त कितना टीडी मिला है? 8%. और सेल के वक्त भाई ने कितना टीडी दिया है? 4%. दिख रहा है आपको? और परचेज के वक्त इसका, सेल के वक्त सीडी तो सेम ही है, ठीक है। मेन माल इसने किधर कमा लिया? मेन माल किधर कमा लिया इसने? टीडी में कमा। दिख रहा है कैसे टीडी में कमाया? परचेज के वक्त ज्यादा डिस्काउंट मिला, सेल के वक्त डिस्काउंट प्राइस सेम था, ग्रॉस प्राइस सेम था। सोचो अगर परचेज के वक्त 8% टीडी होता, सेल के पर भी 8% टीडी देता तो कुछ कमा पाता? जो भाव पे आया वही भाव पे बेच देता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऊपर वाले में भी देखो क्या भाव पे परचेज था, परचेज का टीडी कितना था? हेलो,
What was the TD at the time of purchase? 10%. 10%. तो सेल के वक्त 10% देना चाहिए, 10 से ज्यादा देना चाहिए कि 10 से कम देना चाहिए? Come. 10 से 10 से ज्यादा देना चाहिए ना. परचेज Yes, 10% पे हुआ तो सेल के वक्त 10 से ज्यादा % का टीडी दे देना चाहिए ना अपने को सेल पे. We have to earn profit. So बिंदास दो ना, 20% टीडी, 30% टीडी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शुड द सेल का टीडी बी मोर देन परचेज का टीडी? No. Why? Will be loss. Will be at a loss then. Will be at a loss. Obviously. Got it? समझ रहा है? बिजनेस करते वक्त परचेज के वक्त आपको 10% टीडी मिला तो सेल के वक्त कितना दोगे? 8 दोगे, 7 दोगे, 6 दोगे. 10 से ज्यादा तो नहीं देने वाले, 10 भी नहीं दोगे, 10 से कम ही दो. बराबर है? समझायचे काही? सीडी दे दो. सीडी में भी अगर कंजूसी कर सको तो कर सकते हो. शार्प बिजनेसमैन यही करता है, माल सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है. कोई तो प्रॉफिट होगा कि नहीं? हेलो. तो बिजनेस करते वक्त ये ध्यान रखना है, डिस्काउंट का रेट परचेज करते वक्त जो डिस्काउंट का रेट है सेल करते वक्त उससे कम रेट पे होना है. ओके. सीडी भी कम रेट में हुआ, वेल एंड गुड, लेकिन सीडी सेम भी हुआ तो लफड़ा नहीं है. टीडी में आपने ऑलरेडी मार्जिन रखा हुआ, कमा के रखा हुआ. ओके. इज दिस क्लियर? डिस्काउंट रेट समझाणु बधाने? अच्छा, लास्ट 2 ट्रांजैक्शन एंड देन वी वाइंड अप 30 and 31. 30th one में देखो क्या है. Purchase goods of 6,000 at 10% TD, 1% CD from Vishal and sold to Vasant at 5% TD and 2% CD. Purchase part पे फोकस करो, purchase part. और मुझे बताओ how is the purchase being done, cash or credit? Purchase part. Credit or cash? Purchase. Credit. All of you. Purchase is on credit. पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. तो which discount are you supposed to calculate? Only TD. Only TD. What is the TD? What is the TD over here? 10%. Will you go for CD? Will you go for CD? No, because it's on credit. So tell me a simple journal entry for credit purchase. Purchase क्या होगा? purchase to Vishal. Debit. Expense बढ़ा दो debit. To what? Vishal. विशाल अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा? 6,000 या 5,400? 5,000. टीडी कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ग्रॉस प्राइस कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. बराबर है? क्रेडिट परचेज था, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल, सेम नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल. दिस इज क्रेडिट परचेज. शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ. व्हाट अबाउट द सेल पार्ट? रीड द सेकंड हाफ एंड टेल मी हाउ इज द सेल बीइंग डन. How is the sale being done? Again on credit. Sale is being done on credit basis, yes or no? Sale is being done on credit basis. पार्टी का नाम दिया है वसंत और कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. Which discount are you supposed to take? Great discount. What will be your gross price? 6,000. 5,400. 6,000. अरे कौन है ये 5,400 वाला? પપ્પાની દુકાન 2 વખત બંધ કરાવીશ ભાઈ. હજી હમણાં કીધું. Whenever you buy and sell the same goods, gross price remains same. ભાઈ તે 5,400 માં પરચેસ કર્યા છે. તારી કોસ્ટિંગ 5,400 ની છે. હવે તું એના ઉપર ડિસ્કાઉન્ટ આપીશ? એટલો દિલદાર હરીશચંદ્ર. દુકાન બંધ કરીને સંન્યાસ લેવું છે તને? હરિદ્વાર જવું છે, હિમાચલ જવું છે? किसी को जानेगा तो बोलो, तो फिर दे देना बिंदास 5,400 पे डिस्काउंट. फिर प्रॉब्लम नहीं है मेरे. ओके. इधर रह के धंधा करना है तो कौन से अमाउंट पे डिस्काउंट दोगे आप लोग? ग्रॉस प्राइस. व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस? 6,000. वही तो कमा पाओगे ना यार. ग्रॉस प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तो ही तो कमा पाओगे, वरना कमाओगे कैसा? तो दिस इज 6,000. व्हेनेवर यू बाय एंड सेल द सेम लॉट, जीपी सेम. देखो एमआरपी सेम रहता है, डब्बे पे एमआरपी सेम रहता है. मैंने आपको पहले दिन एग्जांपल दिया था, याद है?
देखो वापस देखो, एक मोबाइल फोन है, ओके मोबाइल फोन है, ये कंपनी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये रिटेलर है और ये कस्टमर। मोबाइल फोन के बॉक्स पे आप लेते हो वन प्लस, अभी वन प्लस नॉर्ड निकला है, नॉर्ड 2 निकला है, तो वन प्लस नॉर्ड का एमआरपी कितना दिख रहा है आपको? 40,000 रुपया दिखता है, बराबर है। तो ये मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट नहीं है भाई, मैन्युफैक्चरर को ये बनने में पड़ा होगा 16,000 रुपए में, 16 से भी कम रहेगा। 16,000 रुपए में ये मैन्युफैक्चरर को बनाने का कॉस्टिंग पड़ा है मोबाइल का। ये इसने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 20,000 रुपए में, कितने में? 20 में बेचा। अभी एमआरपी कितना इसका? 40 है, तो ग्रॉस प्राइस तो सेम ही है ना। तो ये भाई को कितना डिस्काउंट मिला है ग्रॉस प्राइस पे? 50% डिस्काउंट मिला है, 50% टीडी मिला है, 40,000 पे 50% टीडी मिला है, ऐसा होता। अब ये भाई ने 20 में खरीदा, ये भाई रिटेलर को कितने में बेचेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर विल सेल टू रिटेलर, रिटेलर को क्या भाव पे बेचेगा? ये 20 का मोबाइल रिटेलर को 25,000 में बेच दे, 25 से 30,000। अभी वापस इसने 20 में खरीदा था, 25 में बेचा, तो इसने 25 में परचेज किया। इज द ग्रॉस प्राइस डिफरेंट और सेम? सेम, 40,000 का ये एमआरपी। तो बंदा आ रहा है, इस पे कुछ 40% का टीडी मिल गया इसको, 25,000 अप्रोक्सीमेटली 40%, तो 25,000 हो गया इसका प्राइस। आर यू गेटिंग दिस? एंड देन ये रिटेलर आपको कस्टमर को बेचता है, क्या भाव पे बेचता है? 40,000 रुपीज में बेचता है, बराबर है। तो बाकी का 15,000 रुपया प्रॉफिट। एमआरपी किसने चुकाया? खाली कस्टमर ने चुकाया, बाकी सबको ग्रॉस प्राइस पे ही टीडी 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 मिलते हैं। ग्रॉस प्राइस चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा थ्रू आउट। इज दिस क्लियर? इसीलिए एमआरपी पे बेचने के बाद भी आपको प्रॉफिट मिलते रहेगा, सबको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, कस्टमर मैन्युफैक्चरर ने 16 का 20 में बेचा, इसका 4 का प्रॉफिट, इसने 20 का 25 में बेचा, इसको 5 का प्रॉफिट, इसने 25 का 40 में बेचा, इसको 15 का प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? वो 40 में बेचे कि 35 में बेचे कि 36 में बेचे, उसको प्रॉफिट तो मिलने वाला है कस्टमर से, अल्टीमेटली मिलने ही वाला। आपको मालूम है ये चश्मे का फ्रेम कितने का होता है कॉस्टिंग? The specs which you are wearing, you buy it from the shop, right? Or online. So 1,500, 2,000, 1,000 rupees the frames cost you, right? What is the costing of this frame? Any guess? Manufacturer costing? 10 rupees. बहुत ज्यादा कम। 300. I know. It is 50 to 60 rupees. A good frame कॉस्ट इज 50 to 60 रुपीज, 50 से 60 रुपए, 50 से 60 की कॉस्टिंग होती है। सादी फ्रेम तो बराबर बोला 10, 15, 20 रुपए की होती है। 50 to 60 रुपीज इज द कॉस्ट, एंड देन इट गोज टू डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कभी कभी रिटेलर डायरेक्टली जाता है, गंगर ऑप्टिशियन की चेन है, तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करके सीधा आपको बेचता है। तो 15, 20, 25 या 50 रुपए की फ्रेम दे सेल यू फॉर 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000. That's how are the market. You know the shampoo ka bottle, Head and Shoulders and shampoo which you whatever you are using, Clinique or whatever shampoo, except for Patanjali. Patanjali squeezes the margins like. But apart from that, any Head and Shoulder, any whatever shampoo you have, तुम Tresemme और क्या क्या है वो लड़की लोग कल्ला लक्स तो साबुन, I don't know. So whatever shampoos you are using. So what is the MRP of the shampoo? One bottle costs you around 300, 400, 500, right? Yes or no? Yeah. What is the wholesale price? I'm not even talking about the manufacturer price. The wholesale price and the retail price. There is a difference of 50 to 100% margin. बोलने का मतलब 150 rupees की bottle, you get it in retail for 300. The same bottle, if you go it in DMart or Reliance Mart or retail, you get it for 150. And the same bottle, retail shop में आप जो ये body shop वगैरह वगैरह and जो भी आपका retail shop है, that costs you around 300 to 350. ये wholesale और retail का फर्क बोल। Manufacturer को तो 70-80 रुपए में पड़, उधर actual cost उसका bottle का 60, 70, 80 रुपए।
That goes to 300, 350, 400 rupees. Not only shampoo, soaps, confectionery, chocolate, this dairy milk, 80 rupees का जो आप खाते हो ना dairy milk. Hello. This is the retail price, 80 rupees, gross price. The costing कितना है? 20 rupees, 25 rupees. That is the cost. Making the chocolate. Rest all is profit. So 100% margin, 200% margin, 300% margin. These are the margins included over here in the goods. Okay. So always research before buying. Okay. आँख बंद करीने पैसा नहीं आपी देवाना कोई ने. Always research. Okay. Research कि ये माल किधर मिल रहा है, क्या क्वांटिटी में, क्या क्वालिटी में. सब जगह आपको काफी जगह आप ऑनलाइन वगैरह तो अभी सर्च करोगे तो काफी डिस्काउंट्स वगैरह यू विल बी एबल टू. So coming back to this transaction, हवे मने बताओ what will be your gross price when you buy and sell the same quantity? Gross price क्या हो गया? 6,000. Same. 6,000. Okay. उस पे TD लेना है 10%. अभी सेल का TD कितना है? सेल का TD 5%. 5%. less TD 5%, that is 300. So what is your net price? 570. 5700. Will you take CD? No. No CD. So what will be your sales का entry? Vasant account debit to sales. Vasant account debit to sales account. Vasant account debit to sales account. 5,700. 5,700. Okay. No CD. इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट किया कि लॉस? Profit. प्रॉफिट. कितने का प्रॉफिट? 300. क्यों हुआ प्रॉफिट समझ में आया? जीपी तो सेम लेकिन रेट ऑफ डिस्काउंट चेंज. दिख रहा है आपको? आपको मिला कितने टके का डिस्काउंट? 10% का, लेकिन दिया कितने का आपने? 5. दैट्स हाउ यू डू द बिजनेस. नेक्स्ट लास्ट वन, 31st वन, इसी से लिंक्ड है, कनेक्टेड है. वसंत returned half of the goods which were returned back to विशाल. हाफ गुड्स वसंत ने रिटर्न किए और वही गुड्स हमने विशाल को रिटर्न. ऐसा क्यों? वसंत का आया वो गुड्स हमने विशाल को क्यों रिटर्न किया? Vishal would be our distributor. हाँ, तो वसंत ने हमें क्यों रिटर्न किया होगा? पहले Effective. Effective. क्या हमारी गलती थी? हमने तो विशाल से खरीदा था तो हमने उसको चिपका दिया वो गुड्स. कैन वी कंबाइन द टू एंट्रीज, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न? No. No. नीड टू डू इट सेपरेटली, राइट? पहला सेल्स रिटर्न करना है. मुझे बताओ खाली सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या हो? Sales return to Vasant account. Sales return to Vasant, all of you are acquainted with this. Just now we did. Sales return is expense. Expense बढ़ा तो डेबिट. Vasant asset घटा तो क्रेडिट. Debtor घटा, asset घटा तो क्रेडिट. हेलो. तो sales returns to Vasant. Sales returns to Vasant. Now I am telling you the amount. अमाउंट क्या होगा? आधा गुड्स रिटर्न हुआ, आधा. क्या अमाउंट? 2850. 2850. इसका आधा करोगे? 5,700 का आधा करोगे कि 6,000 का? 5,700. 1,700. Why not of 6,000? Net price is बिल तो उसका बना ना 5,700. हाँ, बिल बना है 5,700. क्या भाव पे बेचा है? 5,700. तो रिटर्न भी क्या भाव पे होगा? 5,700. पूरा कर रहा है कि आधा? आधा. आधा. आधा मतलब 5,700 का हाफ कितना होता है? 2850. 850. अच्छा, अभी सपोज आपने 6,000 का हाफ कर लिया हो, 3,000. वुड दैट बी करेक्ट? व्हाई? That's not half the goods. That is half. 6,000 ka half, 3,000. Half. But we didn't sell it for that price. Ah, what is that 6,000? What is that What the 6,000 gross price? price? Gross. तो अगर gross price. 3,000 करोगे तो 3,000 क्या होगा? Gross price. Gross. और ग्रॉस पे क्या करते हो? ग्रॉस पे क्या करते हो? अभी अभी आपने किया. 5% TD. हाँ, तो 5% TD माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 3,000 पे 5% माइनस करोगे तो Net price. यही मिलेगा 2850. Okay, so that is another way. That way also you can do. सुना मेरे? Other method. 6,000 का half. What is 6,000 का half? 3,000. 3,000.
6000 का हाफ इज 3000. बट व्हाट इज 3000? Gross. अब ग्रॉस पे आप क्या करते हो? -5%. डीडी. कौन सा डीडी? वसंत का कि विशाल का? Vasant. सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का डीडी, वसंत का डीडी 5%. कितना होता है 3000 का 5%? 150. नेट प्राइस 2850. वापस यही मिलेगा 2850. ओके, बट बी अलर्ट. आइदर यू टेक 5700 का हाफ और यू टेक 6000 का हाफ, लेकिन उस पर टीडी ले लें. दोनों में से एक करना पड़ेगा. ठीक है, आइदर वेज यू कैन कैलकुलेट द, बट द अमाउंट शुड बी अल्टीमेटली 2850 ओनली. नेट प्राइस पे रिकॉर्ड हो. समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? अब खत्म हो गया कि बाकी है? बाकी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. क्या बाकी? परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न बाकी. तो एंट्री बोलो मुझे पहले. परचेज रिटर्न की एंट्री हमने रिटर्न. Vishal account to purchase. विशाल अकाउंट टू परचेज. विशाल अकाउंट डेबिट लायबिलिटी घटा टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. राइट, विशाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. क्यों? लायबिलिटी घटा तो डेबिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. येस और नो? आता अमाउंट सेम लखी नाखवानुं ने 2850. बराबर ने? 2850 ही आएगा. सेम है. सेम 5700. हाँ. 400 divided by 2. ये क्या बोला? 5400 divided by 2. Why 5400 divided by 2? Because you are returning to Vishal. So Vishal's. लेकिन गुड्स तो वही है. No, but Vishal charged 5400. इधर जानने वाली बात क्या है? We purchased goods from Vishal at that price. एग्जैक्टली. जो भाव पे परचेज हुआ ना वही भाव पे परचेज रिटर्न होगा, और जो भाव पे सेल हुआ है वो भाव पे सेल्स रिटर्न. आपने सेल क्या प्राइस पे किया था? 5700. तो सेल्स रिटर्न भी 5700 का हाफ. अब वही आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो परचेज क्या प्राइस पे किया था? देखो उधर, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ परचेज? 5400. 5400. तो परचेज रिटर्न क्या प्राइस पे करोगे? 2700. 2700. 5400 का हाफ. समझाए छे? देखो सिंपल कॉमन सेंस. समझो. 5400 में खरीदा और 5700 में बेचा. अब उसने सबका सब रिटर्न कर दिया. सबका सब डिफेक्टिव था, सब रिटर्न कर दिया. तो सेल्स रिटर्न का प्राइस क्या होगा? 5700. और आपने भी सबका सब रिटर्न कर दिया. 5400 का खरीदा था और सबका सब रिटर्न कर दिया. तो परचेज रिटर्न में क्या लिखोगे? 5700 लिखोगे? 5400. ही लिखोगे. लॉजिक समझ रहा है? जो भाव पे खरीदा वही भाव पे परचेज रिटर्न होगा, और जो भाव पे बेचा वही भाव पे सेल्स रिटर्न होगा. तो परचेज रिटर्न के वक्त व्हाट विल बी योर प्राइस, व्हाट विल बी योर वैल्यू? 5400 का हाफ कितना होता है? 2700. Why not 2750? Did you understand? What was 27? Why not 2850? What was 2850? Which price? Selling price. Selling price. आपने 10 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 15 में बेची है, तो सेल्स रिटर्न हुआ तो 15 रुपए होगा ना. जो भाव पे बेचा वो भाव रिटर्न विथ प्रॉफिट वाला. और परचेज रिटर्न क्या भाव पे करोगे? वही 10 रुपए का आपने रिटर्न किया, तो परचेज रिटर्न में कितना दिखाओगे? 10 रुपीज दिखाओ. दिखा सकते हो 15? 10 का खरीदा और 15 का परचेज रिटर्न दिखा सकते हो? इज इट पॉसिबल? नो. तो परचेज रिटर्न हैपन एट कॉस्ट प्राइस. जो भाव पे खरीदा वो भाव पे रिटर्न. एंड सेल्स रिटर्न हैपन एट सेलिंग प्राइस. जो भाव पे बेचा वो भाव पे रिटर्न. यू गेटिंग दिस? व्हाट इफ अगर आप 6000 का हाफ लेते? व्हाट वाज 6000? ग्रॉस प्राइस था. 6000 का हाफ कितना होता है? 3000. 6000 का हाफ होता है 3000. बट 3000 तो ग्रॉस है, और ग्रॉस के वक्त आप क्या करते हो? Minus the trade. कौन सा टीडी माइनस करोगे? परचेज 10%. रिटर्न्स के वक्त विच टीडी विल सबट्रैक्ट? 10%. 10%. तो 10%. कितना होता है 3000 माइनस 300? 2700. आया ना 2700.
ग्रॉस वाले मेथड से भी कर सकते हो या डायरेक्टली 5400 का हाफ कर सकते हो तो भी चलेगा। समझाणु। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, आधा किया, आधा आधा किसका? सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का प्राइस, परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज। नेट प्राइस लेना है कि ग्रॉस प्राइस? रिटर्न्स में कौन सा प्राइस रिकॉर्ड करना है? नेट। अगर ग्रॉस दिया है तो क्या करोगे? माइनस TD minus. माइनस माइनस। अब आपको है होमवर्क। होमवर्क बड़ा है, इसके लिए टाइम भी दूंगा। सम नंबर 10 दिख रहा है, रिवीजन एंट्रीज ऑफ TDCD। 25 ट्रांजैक्शन है। कैन यू सी दैट? सब होमवर्क है, नरेशंस नहीं लिखना है। नो नरेशंस, आई डोंट वांट। नरेशन आता है ना सबको? नरेशन में कोई प्रॉब्लम है? हितार्थ भाई, नरेशन छापना है क्वेश्चन, इनगुड्स परचेज फॉर कैश परचेज विद TDC। ओके, तो छापी नाखवानो क्वेश्चन है, नरेशन मत लिख, skip the narrations, it is absolutely fine. बट ट्रांजैक्शन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पूरा होमवर्क है, 25 ट्रांजैक्शन है, सब रिपीटेटिव है। जो मैंने ये 9 सम में डिस्कस किया सब रिपीटेटिव। फिगर्स अलग है, कैलकुलेशंस अलग हो जाएंगे, एंट्रीज वही मिलेंगी। तो ये आपको पूरे 25 के 25 होमवर्क करने हैं और दिखाने हैं सैटरडे। ठीक है? So working we have to show there only. right? Working there itself, working there itself. Working, do it in the particular column. Okay, please do the working properly, just like I am showing it to you. यहाँ पे ये working TDCD पूरा working दिखाओ और फिर entries करना। ठीक है? 1 second. Yes, Loki. Yeah, sir, can you show that income minus expense which you did in the prior sums? Here are. And do we have to note down that? No. That was just for your understanding. Income minus expense नहीं करना, तो खाली तुम्हारा knowledge से। खाली working entry, working entry, working। That's it. ठीक है? Here, why are we adding the discount received? Income है ना, discount receipt। Discount allowed is expense. Discount Include all, received is income. that's what the meaning is. Sorry. So it should include all the incomes, even And- if it's indirect. हाँ, indirect, direct, indirect, every, मतलब non cash income you are saying. Yeah. All expense and all cash as well as non. Both. Total profits are calculated by adding up all incomes and all expenses. So, हाँ, बोलो। so in the 10 sum, that 8th question says that purchase goods from Copin for rupees 10,000 at the rate of 10% TD and 2% CD. So Yeah. here should we count the CD or You tell me, is it on cash or credit? I think it is on credit. So which discount should come? Credit. CD लालच के लिए दे देगा, लॉलीपॉप है CD, हर एक ट्रांजैक्शन में CD नहीं लेना है। CD कौन से ट्रांजैक्शंस में लेना है? Cash transaction. ठीक है? तो ये 25 ट्रांजैक्शन आपको वर्किंग और ट्रांजैक्शन दोनों वहीं पे करने हैं। और कुछ भी डाउट हो सॉल्व करते वक्त तो प्लीज कॉल और व्हाट्सएप मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है? थर्सडे नहीं दिखाना है, सैटरडे दिखाना। तो पूरा 25 ट्रांजैक्शन 4 दिन है आपके पास, आराम से 5-6 करना और सैटरडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। In the same book, right? सेम बुक, सेम नोट। ओके, सेम नोटबुक 9th के बाद 10th। ठीक है? और स्पेस छोड़ देना क्योंकि थर्सडे को मैं नए सम्स करवाऊंगा आपको। 9th के बाद 10th के लिए अगर हो गया वेल एंड गुड, थर्सडे तक नहीं हुआ तो स्पेस छोड़ देना, सैटरडे को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो ध्यान से पूरे 25 विद कैलकुलेशन। कुछ भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो, क्वेरी हो, कॉल और व्हाट्सएप में ताबड़तोड़